ہم کیا کریں ڈی فاسٹر؟ ہمیں تو تم سے فارمولے حاصل کرنے ہیں۔ اگر ہم اس میں ناکام رہے تو بھی ہم قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ ہم تو اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیں گے، اس کے بعد ہمیں کوئی غرض نہیں ہوگی۔ جس کا کام ہے وہ خود ہی نمٹتا رہے گا۔ تم نے تو خود ہی ایک تجویز پیش کی تھی اور اب خود ہی ہم پر شبے کا اظہار کر رہے ہو۔ کیا تمہارا یہ طرز عمل جائز ہے؟ میں نے تو تمہاری بے اعتمادی کے پیش نظر ایک سرسری لائحہ عمل بھی پیش کر دیا تھا اور تم اس سے مطمئن بھی تھے، پھر اچانک تمہارا رویہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ ڈی فاسٹر کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بولا، میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا، اگر تمہاری قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے تو پھر وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم تم سے فارمولے چھین کر تو نہیں لے جائیں گے، تم ہمارے ہر قدم کا جائزہ لیتے رہو۔ اگر سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو اور تم اس سے مطمئن بھی ہو تو ہمارے کہنے پر عمل کرتے رہنا۔ اگر کہیں غیر مطمئن ہو تو ہمیں ٹوک دینا، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ہم اس کام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اور اگر اس کام کی تکمیل کے بعد تم نے کسی موقع پر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ہم جان کی بازی لگا کر بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ڈی فاسٹر نے مضبوط لہجے میں کہا، تم سے جو معاہدہ میں کر چکا ہوں اس پر اٹل ہوں۔ تم میرے لیے فارمولوں کا سودا کرا دو، جو رقم بھی ملے گی اس میں 50% تمہارا حصہ ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو پہلے کی بات ہے ڈی فاسٹر، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دو اور ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بولا، میں بھلا کسی کے خلاف کیا سازش کر سکتا ہوں؟ میں ایک بے بس بوڑھا آدمی جو خود اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ میں نے کہا، بلا شبہ تم بوڑھے ہو اور بظاہر بے بس اور کمزور بھی، لیکن سازش کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت کہاں ہوتی ہے مسٹر ڈی فاسٹر؟ اب یہی دیکھو نا کہ ہم بظاہر تو کنگ ایٹلس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت تمہارے لیے کام کریں گے۔ اگر تم نے کسی بھی سٹیج پر کنگ ایٹلس کو یا روڈیلبو کو اس بات سے آگاہ کر دیا تو ہماری کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ فاسٹر نے حیران ہو کر کہا، میں بھلا ایسا کیوں کرنے لگا؟ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے دنیا کے کسی آدمی پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ بولا، دیکھو تم ابھی تک ناراض ہو، حالانکہ میں پہلے ہی تم سے معذرت کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، گویا یہ بات طے ہو گئی کہ نہ تم ہمارے خلاف کوئی سازش کرو گے اور نہ ہم تمہارے خلاف کچھ کریں گے۔ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ پوری دیانتداری سے پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ وہ بولا، میری طرف سے تو یہ بات پکی سمجھو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم طریقہ کار کیا اختیار کرو گے؟ میں نے کہا، میں نے ایک بہت شاندار طریقہ کار منتخب کیا ہے، سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ ڈی فاسٹر نے کہا، کیا؟ میں نے کہا، کنگ ایٹلس سے بات ہوئی ہے، میں نے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ڈی فاسٹر کو ہمارے ساتھ یہاں سے فرار کرا دیا جائے۔ ڈی فاسٹر اچھل پڑا، کیا؟ تہذیب بھی چونک کر مجھے گھورنے لگی۔ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی توقع سے بہت بعید تھے اور اس کی حیرانی بجا تھی۔ میں نے کہا، ہاں ڈی فاسٹر، میں نے اسے باور کروایا ہے کہ تم سے فارمولے حاصل کرنے کی یہ واحد صورت ہے۔ ڈی فاسٹر نے حق لا کر کہا، تم آخر کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ معلوم نہیں تم کس چکر میں ہو۔ میں نے کہا، تمہیں صرف اپنا الو سیدھا کرنے سے غرض ہونی چاہیے ڈی فاسٹر، میں کیا کر رہا ہوں اسے بھول جاؤ۔ وہ بولا، لیکن یہ تو بہت خطرناک حرکت ہے، تم نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اب وہ کسی بھی وقت اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے ڈی فاسٹر، فارمولے ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں اور ان کے حصول کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ تمہارا اعتماد حاصل کیے بغیر فارمولوں کا حصول ممکن نہیں ہے، اور یہاں سے تمہیں فرار کرائے بغیر ہم تمہارا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ تمہیں اعتماد میں لے کر ہم تم سے فارمولے حاصل کر کے ان کے حوالے کر دیں گے اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں سے اس طرح فرار ہوں گے جیسے اپنی کوششوں سے فرار ہو رہے ہوں، جبکہ ہمیں ان لوگوں کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ فاسٹر بولا، مگر وہ کسی بھی لمحے تمہاری طرف سے مشکوک ہو سکتے ہیں، تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے۔ میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، وہ ہماری طرف سے کبھی مشکوک نہیں ہوں گے، میں نے ان پر پوری طرح اپنا رنگ جما دیا ہے۔ ڈی فاسٹر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور اب مجھ پر رنگ جمانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے کہا، تم پر رنگ نہیں جما رہا ہوں ڈی فاسٹر، تمہاری وجہ سے تو ان لوگوں پر رنگ جمایا ہے، تمہارے لیے تو میں کام کروں گا۔ ڈی فاسٹر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کسی دلدل میں قدم رکھ دیا ہے، اب میرا خدا ہی حافظ ہے۔ میں نے کہا، دلدل میں تو تم اب تک پھنسے رہے ہو ڈی فاسٹر، تم دیکھنا میں تمہیں اس دلدل سے صاف نکال کر لے جاؤں گا۔ تیزی ملکم ایکس خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ ڈی فاسٹر سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا، کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولا، اور اس کے بعد؟ میرا مطلب ہے یہاں سے فرار ہونے کے بعد تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا، یہاں سے ہمارا رخ ہیمبرگ کی طرف ہوگا، ہیمبرگ کے کسی عمدہ سے ہوٹل میں قیام کریں گے۔ وہاں قیام کے دوران ہم ان لوگوں پر یہ ظاہر کریں گے جیسے میں تم سے فارمولوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ در حقیقت میں وہاں رہ کر
फॉर्मूलों का सौदा करने की कोशिशें शुरू कर दूंगा। डी फॉस्टर ने मुझे बगौर देखते हुए कहा, फॉर्मूलों का सौदा करने के लिए तुम क्या इक़दाम करोगे? मैंने कहा, पहले मरहले में तो मैं KGB और अमरीकी CIA के एजेंटों से राब्ता करने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूलों के लिए फ्रेंच सीक्रेट सर्विस के सरगर्म अमल होने की भी इत्तलात हैं। मैं ऐसे मामलात से निपटने का तजुर्बा रखता हूँ, बशर्ते कि तुम मुझ पर एतमाद करो। डी फॉस्टर बोला, मैंने दुनिया में इतने धोखे खाए हैं कि अब अगर कोई मुझसे इंतहाई मुखलिस हो जाए तब भी मैं उस पर यकीन नहीं कर सकूंगा। जाहिर है मैं उसके दिल में तो उतर कर नहीं देख सकता। मैं तो एक फरेब खूरदा शख्स हूँ। अगर तुमने भी मेरे साथ धोखा किया तो ये मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। हाँ, अगर तुम अपने कौल के सच्चे निकले तो मैं हैरान होता रहूंगा। मैंने हौले से डी फॉस्टर का शाना थपथपाया। कहा, दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है डी फॉस्टर, खुद को हमारे हवाले करो और तमाशा देखते जाओ। डी फॉस्टर ने कहा, ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसके लहजे में बड़ी बेबसी थी। मैंने कहा, अब सोने की कोशिश करो डी फॉस्टर, हम भी बहुत थके हुए हैं, मालूम नहीं कब दोबारा हरकत में आना पड़े, उस वक्त हमें पूरी तरह ताज़ादम होना चाहिए। डी फॉस्टर के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लेटते ही सो गया। मुझे यकीन है तहजीब भी सो गई होगी। मुसलसल भाग दौड़ ने हमारा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। अगले रोज सुबह मैं खुद ही उठा। डी फॉस्टर और तहजीब सो रहे थे। गार में उस वक्त भी मसनूई रोशनी फैली हुई थी। उस पेच दर पेच गार में कुदरती रोशनी आने का कोई सवाल ही नहीं था। वक्त का अंदाजा करने के लिए मुझे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का सहारा लेना पड़ा था। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। रात सोते सोते 2 बज गए थे, लेकिन मुझ जैसे आदमी के लिए 8 घंटे की नींद काफी से भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं बहुत ताज़ादम था। कुछ देर बाद तहजीब भी उठ गई। डी फॉस्टर बदस्तूर सो रहा था और उसके खर्राटे गार में गूंज रहे थे। तहजीब मेरे नजदीक सरक आई और धीमी आवाज में मुझसे बोली, तुमने वाकई कमाल कर दिया ली। दोनों पार्टियों को तुमने इस तरह धोखे में रखा कि। मैंने कहा, तुम ज्यादती कर रही हो तहजीब, अब कम से कम एक पार्टी तो हरगिज धोखे में नहीं रही। तहजीब ने पलकें झपकाई। क्या मतलब? मैंने कहा, तुमने डी फॉस्टर की गुफ्तगू नहीं सुनी? उसकी बातों ने तुम्हें मुतासिर नहीं किया? वो किस कदर मजलूम आदमी है। क्या ये मुमकिन है कि हम एक कुचले हुए आदमी को मजीद कुचलें? वो बोली, नहीं, मैं तो खुद हैरान हो रही थी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, जो कुछ मैंने किया उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। तुम देख ही रही हो कि यहाँ से फरार होना कितना मुश्किल काम है। हम अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन डी फॉस्टर को लेकर फरार होना। वो बोली, मैं समझ रही हूँ अली, और तुम्हारे मंसूबे से मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन क्या डी फॉस्टर को ऐसे ही छोड़ दोगे? मैंने कहा, पहले हम यहाँ से फरार तो हो जाएं तहजीब। ये सब तो बात की बातें हैं, मालूम नहीं हमें किस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। डी फॉस्टर के बारे में तो हालात के मुताबिक ही कुछ सोचेंगे। वो बोली, यहाँ से फरार होने में अब रखा ही क्या है, सब कुछ तो तय हो चुका। रोडेल्बो हमसे मुकम्मल ताउन करेगा। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अभी उससे मिलकर जुज़ियात तय करना है, वक्त का तयन करना है। तहजीब ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं रोडेल्बो से मिलकर सारी तफसीलात तय करूं। मैंने कहा, नहीं, ये बहुत अहम मामला है, इसलिए मैं खुद ही रोडेल्बो से सब कुछ तय करूंगा। इस बात पर तहजीब शायद बहस करती, लेकिन उसी वक्त 2 अफराद हमारे लिए नाश्ता ले आए। मैंने नाश्ता लाने वालों से कहा, यहाँ बहुत देर से नाश्ता करने का रिवाज है, सुबह के नाश्ते पर दोपहर के खाने का गुमान गुजरने लगा है। उनमें से एक ने मुस्कुरा कर कहा, हम इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन तुम लोग सो रहे थे। बातों की आवाजें सुनकर डी फॉस्टर भी उठ बैठा। फिर वो हमारे साथ नाश्ते में शरीक हो गया। मैंने बहुत हल्का नाश्ता किया। अंडे के 2 सैंडविच खाकर मैंने थर्मस से अपने लिए गर्मा गर्म चाय उंडेल ली। तहजीब ने हैरत से कहा, अरे ये क्या, और लो ना, सैंडविच तो बहुत है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दोपहर का खाना खाने के मूड में हूँ। अगर पेट भर के नाश्ता कर लिया तो अंदेशा है कि दोपहर का गोल साफ हो जाएगा। नाश्ते से फारिग हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक शख्स गार में दाखिल हुआ। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें रोडेल्बो ने याद किया है। मैंने उठते हुए कहा, चलो। मेरे साथ ही तहजीब भी उठी। उसने हाथ के इशारे से तहजीब को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने गौर से उस शख्स की तरफ देखा। वो एक तवील कामत और तवाना शख्स था। मुझे याद पड़ता था कि जब हम पहली बार रोडेल्बो से मिलने गए थे तो वो मुझे रोडेल्बो के गार से बाहर नजर आया था। वो तहजीब की तरफ मुतवज्जे था और तहजीब सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने तहजीब से कहा, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं रोडेल्बो से बात करके आता हूँ। तहजीब वापस बैठ गई और मैं उस शख्स के साथ गार से बाहर निकल आया। पेच दर पेच कुदरती सुरंगों से गुजरकर हम एक गार तक पहुंचे, लेकिन ये वो गार नहीं था जहां पहली बार रोडेल्बो से मुलाकात हुई थी। मैंने उस शख्स को घूरते हुए पूछा, रोडेल्बो कहाँ है? उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए, होगा कहीं। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुमसे चंद बातें मालूम करनी है। मैंने भिन्ना कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर कुछ मालूम करना था तो वहीं कर लिया होता। ये कौन सा तरीका है?
वो अय्याराना अंदाज में मुस्कुराया। बोला, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने हैं, यहाँ दो या वहां दे देते, बात तो एक ही है। मैंने कहा, फर्क तो बहुत पड़ता है, तुम मुझे धोखा देकर यहाँ लाए हो, रोडेल्बो को मालूम हो गया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। वो आदमी बोला, रोडेल्बो के दिन भी करीब आ गए हैं, बहुत जल्द इस कैंप पर मेरा कब्जा होगा। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ भी काली भेड़े मौजूद हैं। वो बोला, बकवास मत करो और मेरी बातों का जवाब दो। वो शख्स कौन है जिसे उस गार में कैद किया गया है? मैंने कहा, रोडेल्बो ने तुम्हें नहीं बताया? ये बात तो तुम्हें उससे पूछनी चाहिए थी। उसने दांत पीस कर कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और मैं जिससे जो बात पूछता हूँ उसका जवाब हासिल करके ही छोड़ता हूँ। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, ओहो, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उस बूढ़े के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं। उसने झुंझला कर कहा, जितना मालूम है वही बताओ। मैंने कहा, बस इतना जानता हूँ कि उसका रोडेल्बो से खास ताल्लुक है और कुछ नामालूम अफराद उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं जिनसे वो छुपता फिर रहा है। उसने कहा, वो नामालूम अफराद उसकी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। वो बोला, तो तुम लोगों की यहाँ आमद क्या मानी रखती है? मैंने कहा, रोडेल्बो ने हमारी खिदमत इसलिए हासिल की हैं कि हम उसे यहाँ से बाहिफाजत निकाल ले जाएं। वो बोला, क्या हम लोग मर गए थे कि इस काम के लिए उसने किसी और की खिदमत हासिल की? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोडेल्बो कह रहा था कि उसके आदमी निकम्मे और कामचोर हो गए हैं, किसी बड़े काम के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने हिकारत से मुझे देखते हुए कहा, और तुम पर किया जा सकता है, तुम जो सूरत से ही अहमक मालूम होते हो। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, सूरतों में कुछ नहीं रखा, असल चीज तो सलाहियत होती है और उसका शक्ल सूरत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बोला, मुझे यकीन है कि तुम उस बूढ़े की असलियत से वाकिफ हो और मुझसे छुपा रहे हो। मैंने कहा, और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हें उस मरियल शख्स से इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। वो बोला, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है और मुझे भी इसकी थोड़ी सी भनक मिल गई है। उसके कब्जे में कोई ऐसी चीज है जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर तक पहुंचती है। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी। सूरत हाल बहुत नाजुक मालूम होती थी। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें ये बात रोडेल्बो ने बताई है? वो बोला, अगर उसने बता दी होती तो मुझे कोई गम ना होता, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम अकेले हजम करने के चक्कर में है, उसकी नीयत में फतूर आ गया है। अब तक हम सब यहाँ से होने वाली आमदनी में हिस्सेदार हुआ करते थे, लेकिन इस बार उसने किसी को उस बूढ़े के बारे में हवा भी नहीं लगने दी। मैंने कहा, तुम्हारी मालूमात गलत भी तो हो सकती हैं। मुमकिन है रोडेल्बो के किसी शख्स ने उसके आदमियों में बगावत फैलाने के लिए इस किस्म की हवा छोड़ी हो। वो बोला, मुझे मालूम है ये कोई हवाई नहीं है। उस बूढ़े की जिस तरह निगरानी की जा रही है उससे यही जाहिर होता है कि वो बेहद अहमियत रखता है। इसके लिए बहुत कश्तो खून हो चुका है। ये बात तो मुझे पहले ही से मालूम थी कि यहाँ आते हुए तुम दोनों पर हेलीकॉप्टर तक से हमला किया गया। किसी मामूली आदमी के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हो सकता। मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, तुमने अपनी हलाकत के सामान पूरे कर लिए हैं, अब तुम्हारा जिंदा बचना मुहाल है। वो कटखने कुत्ते की तरह गुर्राया। तुमने मेरे सवाल का जवाब न देकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। उसने कमर से लिपटी हुई चमड़े की बेल्ट खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चाहो तो अब भी जबान खोलकर अपनी खाल उतरने से बचा सकते हो। मैं खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। वो गार के दहाने पर खड़ा बेल्ट को हवा में गर्दिश दे रहा था। बोला, अब भी वक्त है, मुझे बता दो कि उस बूढ़े की क्या अहमियत है, वरना बाद में तुम किसी से ये कहने के काबिल भी नहीं रहोगे कि जैक ने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मेरे और उसके दरमियान 8 फुट का फासला था। मैंने उसे जवाब देने की बजाय अपने बचाव की तदबीरों पर गौर करना शुरू कर दिया। मालूम नहीं उसके पास पिस्तौल था या नहीं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ था कि उसने मुझ पर पिस्तौल निकालने के बजाय मुझसे बेल्ट के जरिए निमटने का फैसला किया था। उसने कहा, गोया तुमने जबान न खोलने का फैसला किया है, और फिर अचानक आगे बढ़कर मुझ पर बेल्ट से हमला कर दिया। उसका ख्याल था कि मैं इस हमले से बचने की कोशिश करूंगा, मगर मैंने उसे हैरान कर दिया। मैं अपनी जगह डटा खड़ा रहा और मैंने बेल्ट को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। ये अलग बात है कि अपनी ये कोशिश मुझे बेहद महंगी पड़ी। मैं बेल्ट पकड़ने में नाकाम हो गया था और चमड़े की मोटी बेल्ट ने मेरे उल्टे हाथ में अंगारे भर दिए। शदीद तकलीफ की एक लहर ने मुझे सर से पैर तक अपनी गिरफ्त में ले लिया। लम्हे भर को मेरे हवास मुअत्तल हो गए और लम्हाती तातुल मेरे लिए कयामत की नवीद लेकर आया। जैक का बेल्ट बरदार हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत कर रहा था और हर बार बेल्ट मेरे जिस्म से टकराती तो यूं महसूस होता जैसे जिस्म के उस हिस्से में किसी ने अंगारे भर दिया। अगर मेरे जिस्म पर कपड़े न होते तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। मैंने झुकाइयां देकर बेल्ट की जद से निकलने की कोशिशें की, मगर मैं कितनी बार बच सकता था। जैक के 2 बार खाली देने के बाद तीसरी बार बेल्ट मेरे जिस्म के किसी न किसी हिस्से से जरूर टकरा जाती। मैंने झल्लाकर जैक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी मुझे महंगी पड़ी। वो न सिर्फ फुर्ती से एक जानिब हट गया
बल्कि उसने मजीद कई बार बेल्ट मेरे जिस्म पर रसीद कर दी। बिलाखिर मुझे पीछे हटना पड़ा। कोड़े की तरह लहराती हुई बेल्ट बार बार मेरे जिस्म को चाटने के लिए मेरी तरफ लपक रही थी और मैं उससे बचने के लिए पीछे हट रहा था और कभी झुककर जैक के वार खाली दे रहा था। मेरे जिस्म पर कई मकामात ऐसे थे जहां मुझे आग लगने का गुमान हो रहा था, लेकिन मेरे पास इतना वक्त भी तो नहीं था कि मैं अपनी चोटों को सहला ही सकता। फिर एक बार बेल्ट मेरे हाथ में आ गई और मैंने पूरी कुव्वत से उसे मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरी झुंझलाहट पहले ही इंतहा को पहुंची हुई थी, चुनाचे मैंने पूरी ताकत से बेल्ट को अपनी तरफ खींचा। मुझे यकीन था कि ये अचानक झटका जैक के कदम उखाड़ देगा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वो किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा है। उसके फौरन बाद मुझे जवाबी झटका सहना पड़ा। ताकत के एतबार से वो यकीनन मुझसे बहुत ज्यादा था। तभी तो मैं वो झटका सह न सका और मेरे कदम उखड़ गए। फिर दूसरा झटका मुझे मुंह के बल जमीन पर ले गया। अगर मैंने बर वक्त बेल्ट न छोड़ दी होती तो मुंह के बल गार के संगी फर्श पर गिरकर अपने मुंह का भुरता बना बैठता। मैंने तेजी से बेल्ट छोड़कर अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। मुंह तो बच गया, मगर मेरे दोनों हाथ और घुटने छिल गए। जैक ने दरिंदगी से भरपूर कहकहा लगाया। सफाकाना लहजे में बोला, मैं तेरे जिस्म का रेशा रेशा उधेड़ कर रख दूंगा। मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने वक्ती तौर पर हाथ रोक लिया था। शायद वो ये समझ रहा था कि मैं खौफजदा होकर जबान खोल दूंगा। मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा, तुम खुश फहमी का शिकार हो गए हो जैक। तुम किसी भी तरह मेरी जबान नहीं खुलवा सकोगे। जैक की आंखें सुकड़ गईं और उसने होंठ भींच लिए। वो गुर्राया, मालूम होता है अभी दिमाग ठिकाने नहीं आए। मैंने अपनी तकलीफ जब्त करते हुए कहा, और आएंगे भी नहीं। तुम मेरे मुंह से एक सिसकारी तक सुनने को तरस जाओगे। मेरे जवाब पर जैक आपे से बाहर हो गया और एक बार फिर बेल्ट तान कर मुझ पर झपट पड़ा। इस बार मैंने न तो बेल्ट से बचने की कोशिश की और न ही बेल्ट पकड़ने की, बल्कि मैं भूल गया कि उसके हाथ में बेल्ट भी मौजूद है। जब पिटना ही ठहरा तो जिद्दोजहद क्यों न की जाए। इधर जैक का बेल्ट वाला हाथ हरकत में आया और इधर मैं उस पर झपटा। जैक के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस कदर पिटने के बाद मैं उस पर यूं झपट पड़ूंगा, इसलिए वो अपने दिफा की तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गया था। और यही वजह थी कि मेरे घूंसे को अपना टारगेट तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। गो के इस चक्कर में मुझे अपने जिस्म पर बेल्ट का एक और वार सहना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ जैक के बाएं जबड़े पर भी कयामत गुजर गई। मेरा घूंसा पूरी कुव्वत से उसके बाएं जबड़े पर पड़ा। जैक के हलक से करा खारिज हुई और इस्तरारी तौर पर बेल्ट उसके हाथ से छूट गई। उसने दोनों हाथों से अपना जबड़ा दबा लिया था। शायद उसका कोई दांत भी हिल गया था। कुल्ला तो बहरहाल फट गया था। उसके होंठों से बहने वाला खून गवाही दे रहा था। आने वाहिद में पांसा ही पलट गया। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर जमीन पर गिरी हुई बेल्ट उठा ली और बरकी सूरत से उसे लेकर जैक पर पिल पड़ा। मेरा पहला निशाना जैक का चेहरा था, जिस पर उसके दोनों हाथ रखे हुए थे। बेल्ट की पहली ही ज़रब से मैंने उसके हाथ की पुश्त पर सुर्ख निशान उभरते देखा। उसके मुंह से सिसकारी निकली और वो तिलमिला कर रह गया। मैंने दांत भींच कर कहा, अब मेरी बारी है जैक।